Today's topic is change of order of integration. So in the previous lecture, we studied about how to evaluate double integration, means we have limits of x variable and y variable. So now the change of order of integration means I told you in that lecture that we have double integration means one limit of x variable, other limit of y variable. So we can solve this in two ways. First, we can integrate it with respect to one variable, keeping the other variable constant, and apply the limits. Then integrate about the with respect to the other variable. And similarly, means suppose we have two variables, so you can integrate this with respect to y first, then with respect to x. So limit must be in that order, means first limit, if you are integrating this with respect to y, then the limits of first integration must be of y variable. Similarly, we can integrate this by using the reverse order also, means we can integrate this with respect to x first, applying the x limits, then we can integrate this with respect to y. So if you know the reason of double integration, means we have to integrate this over one region, that is r. So if you know the graphical structure of this region r, then we can uh, change the limits in the reverse order. Means if these limits are in the order of x y, then we can change it with this in the order yx. So if you know the reason of integration, we can change these limits. So now, so we have two ways: either we can integrate with respect to x first, then y, or with respect to x with respect to y first, then with respect to x. So what is the, so this is called change of order of integration. We can change the order of integration in order to simplify the integration. So the purpose of this topic, change of order of integration, is the that to make this integration easy. So you can, means you will face some questions where the direct integration is very typical, or we can say that impossible. Like in this example, the function is 1 over log y. So this is log y inverse. So because the initial limits are of y variable, these are e to the power x e. So these are limits of y variable. So first we have to integrate this with respect to y. So how to integrate this function with respect to y? The function is 1 over log y. So how to integrate this with respect to y? Similarly, one more question here: if you have to integrate this with respect to y first, means y square over y to the power square root of y 4 a square minus a square x square. So this will be very typical to integrate with respect to y. Similarly, for this function 1 over log y, how to integrate this? So there are two cases: either this is it is very typical to integrate this function, or the integration may not be possible. So in both of these cases, what we will do, we will try to change the order of integration, because this function 1 over log y, so first we can we can integrate this with respect to x, then with respect to y, so that this integration is possible, or we can make this integration easy. Similarly, for this case also, the initial limits are in terms of x. That means the limits are, these limits are of y variable. So first we have to integrate this with respect to y, but this function is either very typical to integrate, or the integration is not possible with respect to y. But if we change the order of integration, so we will first integrate this with respect to y, and with respect to x, sorry, with respect to x. So and if you see, if you observe the function y square over square root of y4 minus a square x square, this is relatively easy to integrate with respect to x, because y is constant with respect to x. So the function is like 1 over square root, suppose this is constant, so a square minus x square. So this will reduce in terms of sine inverse function. So if we can integrate this with respect to x very easily, otherwise the integration is very typical. So in, so these are the example where we can say the change of order of integration will help us.
So now you know the objective. What is the objective? What is the application of change of order of integration? Sometimes we will face some integration where the direct integration is very typical, or sometimes the integration is not possible. So in that case, we will change the order of integration so that our integration is easy to calculate, or it will take less time. So otherwise there is no, means this is not different topic. Simply you must know how to change the order of any integration. Clear? So again, you must know what is the reason. So if you have the graphical structure of region, this region R, then very easily, means I told you that if you have to integrate this in the previous topic, if we have a choice that the region is given, then using that region, suppose this is your region, so using that region, either we take a strip parallel to y-axis or a strip parallel to x-axis. So the initial integration is, if suppose with respect to x, so we will take the strip parallel to x, and अगर आपको y के respect में पहले integrate करना है, so we will take the strip with respect parallel to y axis. So using this concept, which we already studied in the previous topic, we can change the order of integration. So now the questions. So if it is not means like in this question, by changing the order of integration, so we have a restriction that first we have to change the order of integration, then we have to evaluate it. Clear? Otherwise, in this question also change the order. If this is your question, only evaluate this integration, then we have choice that either we can integrate directly or we can change the order. But if it is mentioned that change the order of integration, then first we have to change the order of this integration, then we have to evaluate it. So it depends on the examiner that whether the change of order is mentioned or it is not mentioned. Change the order of integration, change the order of integration, change the order of integration. So the most of the question are, it means they are most of the question they have mentioned that the change of, or you have to change the order of integration. So if the question is simple that evaluate this integration, then it is up to us that whether we will integrate this directly or the integration is easy when we change the order of integration. But if it is mentioned that we have to evaluate this using change of order of integration, then first we have to change the order of this integration. So now the first question, by changing the order of this integration, show that this integration is pi by 2. So first we have to evaluate this. Clear? So how to evaluate this? These are constant limits, 0 to infinite, 0 to infinite, e to the power minus xy sin px dxy. So in constant limits, we can say that these are x limits, these are y limits, or we can say these are y limits, these are x limits. So there is no problem. Clear? Because nothing is mentioned. This is 0 to infinite, 0 to infinite. So both limits are from 0 to infinite and they are constant. So we can integrate this function with respect to x first, or we can integrate this function with respect to y also. So suppose if we integrate this with respect to x, so this is dx, 0 to infinite. Now we have to integrate this function with respect to x. So what is the integration? This is e to the power ax sine bx type. Clear? This is e to the power ax sine bx. And if you know that the direct formula for this integration is e to the power ax divided by a square plus b square. And this is b cos bx plus a sine bx. So this is the formula, direct formula for this integration. So you can search this formula. So after integrating, we will find this function. Next, the limit 0 to infinite. So operate these limits. So these are x limits. So we have to substitute this at the place of x. So the upper limit is infinite. So this is e to the power minus infinite into y. That means e to the power minus infinite, and into this cos
infinite plus sine infinite. And you know that cos infinite, cos of infinite is oscillatory value, means this will oscillate between -1 to 1. We can't evaluate it directly, means we cannot have a single value. Only we can say only one thing, that cos of infinite is oscillatory value between -1 to 1. Clear? So this is one constant into e to the power minus infinite. So what is e to the power minus infinite? E to the power minus infinite is 1 over e to the power infinite. That means 1 over infinite means 0. So 0 into something is 0. So the at the upper limit, the function is 0, and minus the lower limit. So e to the power 0 is 1, 1 over p square plus y square, and cos 0 1, and sine 0 0. So this is p into 1. So p over p square plus y square. This is after the applying the limit. Now we have to integrate this now with respect to y. So with respect to y, that p is constant, so 1 over a square plus y square type. So this is sine inverse y by p into 1 by p. So this p will cancel that 1 by p. So after again the applying limit, tan inverse infinite is pi by 2, and tan inverse 0 is 0. So this is pi by 2. Now we have to find out this value. 0 to infinite sine px by x dx is pi by 2. So using the same integration, this now we are changing the order of this integration. So what is the reason? So what reason is this? Because this is the x limits are 0 to infinite, y limits are 0 to infinite. So 0 to x is x 0 here and infinite here. Similarly, y 0 here and infinite here. So this is your reason. The first quadrant is your reason. So in this reason, if now we have to, so this is your reason, first quadrant. Now you have to, if you have to change the order. So either this is with respect to x strip, this is y with respect to y strip. So now we are so on changing of integration, again we will find the same limits, because here first here we have integrated this with respect to x first. Now if we want to integrate this with respect to y, so finding out the y limits, so we have to get the strip against the parallel to y axis. So what is the lower limit of y? Y is equal to 0, and up to what is the upper limit of y? Infinite. So this region is infinite. So 0 to infinite first y limits, and for and what is the variation in x in this region? X is 0 here, means minimum 0, and maximum it is going up to infinite. Clear? So the limits after changing the order of integration also we will get the same limits. So these are x limits, these are y limits. Now first we will integrate this with respect to y. So with respect to y, so sine px is constant with respect to x. So this is sine px. Here we have y term, e to the power minus xy. So e to the power minus xy in dy dx. So first we will integrate this with respect to y. So what is the integration? E to the power minus xy divided by minus x, because x is constant with respect to y. Now apply the limits. You will get e to the power minus infinite, so 0, and e to the power 0 by minus x. So because this is a lower limit, so we will get minus sign also. So we will get 1 by x. So this is sine px by x 0 to infinite dx now. Now we have to integrate this with respect to x, but we have to prove that this value is pi by 2. So because this integration we have already evaluated. So this value is pi by 2. And after simplifying, means after one integration, this integration is giving this. So because the value of this integration is pi by 2, so this integration is also pi by 2. So this we have proved. Now the next question, change the order of integration in this integral. Because the function is unknown, we don't know the function f of xy. So the question is change the order of this integration. So only we have to change the order. Clear? We don't have to evaluate it because we don't know the function is unknown. So only one thing we have to do, we have to change the order of integration. Clear? So now first find out, so to change the order of integration, we have to know the reason. So what is the reason?
the first limit is 0 to in terms of y, this is in terms of y, that means these are x limits. ये क्या है, y की टर्म्स में है ना, तो किसकी लिमिट्स होंगी, x की लिमिट्स होंगी. So these are x limits and these are y limits. So first so x varies from 0 to this value, square root of a square minus y square. So maximum means x is equal to 0 to square root of a square minus y square. So if you solve this, x is equal to a square root a square minus y square. So what we will get, it is making the square. So x square is equal to a square minus y square. That means it is a circle, x square plus y square is equal to a square. Clear? So x is 0 here, means this is the line, x is equal to 0, and it is going from this point, this is lower limit, means from this point to this circle. So this is the whole circle, x square plus y square is equal to a square. So we have to go x is equal to 0 to the circle, so we can move to this side or to this side. So now the y value, so next the y limits are minus a to a. So by minus a from here to here. Clear? So the bounded region is because they have not mentioned okay here, because this is going positive side. If you remember that here this is x is equal to minus square root a square minus y square, because here the x value is negative. So this circumference, this is the line x square plus y square is equal to a square. But if you see that on this half the x is positive, so x is square root a square minus y square, and on this side x is minus square root a square minus y square. So the total region is on the this side, right hand side. So this is your reason, because this is going from x is equal to 0 to plus square root a square minus y square. So from this point to this circle, and y from minus a to plus a. So this is your total reason. Clear? So this is your reason. Now we have to change the order of integration. So for here the first limits are with respect to x. So we have to now make the first limits with respect to y. So we will take the strip parallel to y-axis. So this is your strip. Now what is the lower limit of y here? Because the lower limit is getting through this curve, and this curve is x square plus y square is equal to a square. So what is the lower limit here? Because y is negative here, so it is y is equal to minus square root a square minus x square, and the upper limit is on this curve, and this curve is also this circle, but here y is positive, so y is going up to square root a square minus x square. Clear? I repeat, बिकॉज हमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में लिमिट्स निकालनी है पहले. तो y के पैरेलल हमने स्ट्रिप बनाया, इसकी लोअर लिमिट हमें कहाँ से मिल रही है, इस सर्कल से, और इस सर्कल पर y, क्योंकि y की वैल्यू क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, तो इस सर्कल पूरे पर हमारा y स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बट y स्क्वायर की वैल्यू तो ये है, लेकिन हमें क्या है, y नेगेटिव चाहिए यहाँ. तो y की वैल्यू इस सर्कल से क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बट y नेगेटिव है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस, sorry, this must be x, this must be x square, this must be x square. So इस सर्कल पर, और अपर लिमिट हमें यहाँ से मिल रही है, यहाँ पर y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर y पॉजिटिव यानी y स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो द y लिमिट्स आर माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ x लिमिट, अब इस टोटल रीजन में x कितना वेरी कर रहा है, तो x की मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिल रही है, यहाँ पर, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिल रही है. ऐसी तो x वेरी कर रहा है इस रीजन में, तो x की मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, क्योंकि ये सर्कल है. तो ये सर्कल x एक्सिस को कहाँ टच करेगा, x इज इक्वल टू a पर, क्योंकि रेडियस क्या है इस सर्कल की, a.
तो 0 से कहां तक जाएगा, a तक जाएगा. सो 0 to a. सो दिस इज अवर आंसर. हमें केवल इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना था. सो हमने पहले यहाँ पहले x की लिमिट्स थी, हमने y की लिमिट्स बना दी और आउटर वाली x की लिमिट्स हो गई. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें इवेल्युएट भी करना है ऑर्डर चेंज करके. तो पहले हम देख लेते हैं किसकी लिमिट है, रीजन बना लेते हैं. चेंज ऑफ ऑर्डर में आपको रीजन ही बनाना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो कि नेक्स्ट लिमिट्स क्या होंगे. तो आपका फंक्शन क्या है, 1/log y dy dx. तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, 1/log y. अब लिमिट्स देखते हैं पहले किसकी है, पहले किसकी है, e to the power x to e, यानी लिमिट्स किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, यानी ये लिमिट्स किसकी होंगी, y की लिमिट्स होंगी. यानी पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर x के रिस्पेक्ट में. बट हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना है इस इंटीग्रेशन के लिए. तो यानी पहले अब यहाँ y की लिमिट्स है, तो हमें x की लिमिट्स लानी पड़ेंगी. तो यानी हमें x के पैरेलल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी उस रीजन में. तो पहले रीजन बना लेते हैं. तो y की लिमिट्स क्या है, y कहां से कहां तक मूव कर रहा है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x से e तक. तो अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर x का आप कर्व बनाएंगे, e टू द पावर x क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा. क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 1. यानी 1 से स्टार्ट होगा. इस कर्व को आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x से स्टार्ट हो रहा है. तो e टू द पावर x से जब स्टार्ट होगा, तो अगर x की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पर, तो x की वैल्यू 0 पर ये y कितना बनेगा, e टू द पावर 1 यानी e. तो यानी वो यहाँ कहीं आएगा, सॉरी x की वैल्यू 0 रखना है आपको. तो y इज इक्वल टू e टू द पावर 0 यानी e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1. तो 1 यहाँ कहीं होगा y एक्सिस पर. क्लियर? तो यहाँ y 1 से स्टार्ट हो गया. फिर आप x को जैसे ही इंक्रीज करते जाओगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होती जाएगी. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e टू द पावर 2, e टू द पावर 3, e टू द पावर 4 वो क्या है, इस तरह से मूव करेगा. तो ये हो गया लोअर लिमिट. अब e टू द पावर x से कहां तक मूव कर रहा है, y इज इक्वल टू e टू द पावर सॉरी e टू द पावर 1 तक. तो e टू द y इज इक्वल टू e, यानी e की वैल्यू क्या होती है, 2.73 समथिंग. क्लियर? यही तो होती है. तो ये था e टू द पावर 0 और e टू द पावर 1 यहाँ कहीं होगा. 2 पॉइंट मीन्स ये यानी 1 हो गया, और ये कितना है, 2 पॉइंट समथिंग होगा. तो आपने क्या किया, इसको यहाँ से ये होगी लोअर लिमिट, और 2 y इज इक्वल टू e तक जा रहा है, यानी ये हो गया y इज इक्वल टू e लाइन. y इज इक्वल टू e लाइन 2.73. क्लियर? अब x की लिमिट देख लेते हैं. x की लिमिट है 0 से 1. तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा. और x इज इक्वल टू 1 हम चेक कर लेते हैं कहाँ होगा. तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ मीन्स इस कर पर या तो ऐसे हो सकता है, या इस पॉइंट पर हो सकता है, या यहाँ हो सकता है. तो वो हम चेक कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 कहाँ होगा. मीन्स x इज इक्वल टू 1 इसको कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये क्या है, x की वैल्यू क्या चाहिए 1 चाहिए. तो x की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो ये कहाँ मिलेगा, y की वैल्यू क्या मिलेगी, e मिलेगी. यानी इस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी. क्लियर? यानी ये पॉइंट जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू 1. क्लियर? आप फंक्शन चेक करोगे ना कि आपको, क्योंकि लाइन नहीं पता है कि x इज इक्वल टू 1 लाइन कहाँ होगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी. तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो, इस कर्व को. ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x. तो x इज इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू e, यानी वो पॉइंट क्या होगा, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट जो x का होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1. तो हमें रीजन मिल गया. रीजन क्या मिला, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर x से y इज इक्वल टू e. तो ये हमारा बाउंडेड रीजन कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया केवल. क्लियर? ये हमारा क्या हो सका, बाउंडेड रीजन हो गया. तो इस रीजन में अब हम लिमिट्स देख लेते हैं. तो क्योंकि पहले यहाँ y की लिमिट्स थी, अब हमें x की लानी है. तो x के पैरेलल हमें स्ट्रिप बनानी पड़ेगी. तो हमने x के पैरेलल स्ट्रिप बनाई. अब इसके देखिए इस रीजन में x की लोअर लिमिट क्या है, 0. और x कहां तक जा रहा है, इस कर्व तक जा रहा है. हमें x इस कर्व तक ही तो मिल रहा है. इस कर्व पर x की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू e टू, ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x. यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log y.
इसको आप log लीजिए तो क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी log y। तो 0 x इज इक्वल टू 0 से log y, और यहाँ पर y टोटल कितना वेरी कर रहा है, तो y की मिनिमम वैल्यू आप चेक कर लीजिए इस पूरे बाउंडेड कर्व में, तो y मिनिमम ये है, ये पॉइंट क्लियर। तो y यहाँ पर कितना है, y इज इक्वल टू 1, और मैक्सिमम y कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक यानी e तक जा रहा है, तो y इज इक्वल टू 1 टू e, क्लियर। सो x इज इक्वल टू 0 टू log y, y इज इक्वल टू 1 टू e। अब आप इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि हमें इस केस में इवेल्युएट भी करना है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सो x के, क्योंकि 1 ओवर log y इज नॉट इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया, अब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। तो क्योंकि फंक्शन क्या है 1 ओवर log y विच इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x 1 ओवर log y तो कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो केवल 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, एंड लिमिट्स 0 टू log y। अब इसको लिमिट्स ऑपरेट कीजिए तो कितना मिलेगा, log y माइनस 0, तो log y से log y कैंसिल हो गया, तो माइनस 0 यानी केवल 1 बचा, तो यानी 1 इंटू डी वाई। तो देखिए कितना इजी हो गया अब इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन अगेन y, और लिमिट्स क्या है y की 1 टू y, 1 टू e, तो e माइनस 1 इज योर आंसर। तो देखिए हमें जो इंटीग्रेशन बहुत टफ था या इम्पॉसिबल था, लेकिन हमने जब ऑर्डर चेंज किया तो ये इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, दिस विल मेक द इंटीग्रेशन वेरी इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड हेंस इवेलुएट। तो पहले तो जब भी आप ऑर्डर चेंज करोगे आपको पहले रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि रीजन से ही आपको लिमिट्स मिलेंगी। तो पहले ये देखिए किसकी लिमिट्स हैं, लिमिट्स किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, यानी y की लिमिट्स है, तो अब हमें x की लानी है, यानी x के पैरेलल हमें स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। अब रीजन बना लेते हैं। तो x की वैल्यू है, तो ये x की टर्म्स में है, यानी y की लिमिट्स है, तो y की लोअर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4a, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4a कितना बनाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाय, एंड y की अपर लिमिट क्या है 2 स्क्वायर रूट ax, यानी y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4ax, y स्क्वायर की वैल्यू होगी 4ax। तो ये वाला अगर पहला वाला देखें वो हमारा वो भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है। ये वाला पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाय, ये वाला पैराबोला है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला पैराबोला है। दोनों ओरिजिन से पास होंगे। अब इससे बाउंडेड रीजन कौन सा होगा, दोनों में ये वाला बीच वाला पार्ट ये बाउंडेड रीजन हो गया, और x की वैल्यू क्या है 0 टू 4a, तो x इज इक्वल टू 0 यानी यहां से है, और 4a कहां होगा, देखिए क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट करके आपको इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो 4a इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यही आएगा, क्लियर। ये दोनों पैराबोला दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे 0 0 एंड 4a, वो कैसे मिलेगा, आप क्या करिए, इस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से या तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 4a, और यहाँ y की जगह रख दीजिए, तो y की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये आपको x में एक इक्वेशन देगी। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक 0 एक 4a, तो यानी 0 और 4a पर वो इंटरसेक्ट, तो 0 0 तो ये हो गया एंड 4a ये हो गया, क्लियर। तो आपका ये जो पॉइंट है वो हो गया 0 0 और ये हो गया 4a। तो हमारा बाउंडेड रीजन मिल गया। आप देख लीजिए कैसे लिमिट्स निकालनी है। तो लिमिट्स क्या होंगी, ये पहले किसकी लिमिट है, पहले अभी x की लिमिट थी, y की लिमिट थी, अब हमें x की बनानी है, तो यानी हमने स्ट्रिप जो बनाई इस रीजन में वो इस तरह से बनाएंगे। अब लोअर लिमिट देख लिए, तो लोअर लिमिट कहाँ से मिल रही है, इस कर्व से, यानी ये कौन सा है पैराबोला है, कौन सा वाला है, ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, सॉरी ये 4ax है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी y स्क्वायर बाय 4a, तो y स्क्वायर बाय 4a हो गया लोअर लिमिट, और x में कहाँ तक जा रहा है, इस कर्व तक जा रहा है, इस कर्व पर हमारी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 4ay, और पॉजिटिव होगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 स्क्वायर रूट ay, सो 2 स्क्वायर रूट ay। और इसमें देख लेते हैं टोटल y कितना वेरी कर रहा है, तो y की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम यहां तक जा रहा है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है 4a, सो 0 टू 4a। तो हमने ऑर्डर चेंज किया, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या था dx dy, यानी फंक्शन 1 है, और मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था व्हेन द इंटीग्रांड इज 1 मींस द फंक्शन fxy इज 1, देन द इंटीग्रेशन विल गिव यू द टोटल एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। तो इस रीजन का, क्योंकि हमें इस केस में इंटीग्रांड इज 1, देन
so means the integration will give you the area of this bounded region. Clear? So पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, अब x के रिस्पेक्ट में होगा. so x is the integration of dx is x. लिमिट्स आपने अप्लाई की, आपका फंक्शन ये आ गया. अब इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में किया, लिमिट अप्लाई की, ये कितना आ गया 16a² / 3. सो दिस एरिया इज 16a² / 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन चेंज द ऑर्डर. पहले किसकी लिमिट है, x के टर्म्स में यानी y की लिमिट है, तो ये x की लिमिट है. तो पहले तो रीजन बनाइए. तो ये y की लोअर लिमिट क्या है, √ax, यानी y² की वैल्यू क्या होगी ax. y की वैल्यू क्या है √ax, तो y² क्या हो जाएगा ax. तो y² ax क्या होगा, एक पैराबोला होगा. ओरिजिन से पास होगा तो वो कौन सा पैराबोला होगा, ये वाला पैराबोला होगा. नेक्स्ट, अपर लिमिट क्या है a, तो y = a, ये लाइन हो गई. तो यानी ये रीजन हो गया. प्लस x की लिमिट्स क्या है 0 to a, तो x 0 कहाँ मिलेगा, इस लाइन पर मिलेगा. और a कहाँ मिलेगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि इस रीजन में x = a लाइन यहाँ होगी या यहाँ होगी या यहाँ होगी, वो हम चेक कर लेते हैं. ठीक है. तो आपको एक और पॉइंट है कि ये जो y = a लाइन है वो पैराबोला को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है. तो y = a यहाँ रखिए, तो a² = ax. तो a से a² एक कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी a, यानी ये पॉइंट जो होगा वो x = a होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो ये पॉइंट क्या हो गया a a. x की वैल्यू भी a है और y की वैल्यू भी a है. दिस पॉइंट इज a a. तो आपको कहां तक जाना था, x = 0 से x = a तक, यानी ये पॉइंट क्या हो गया x = a. आप देख लीजिए लिमिट पहले किसकी थी, y की, अब x की चाहिए, तो x के पैरेलल हमने स्ट्रिप बनाया. अब लोअर लिमिट अपर लिमिट देख लेते हैं. तो लोअर लिमिट क्या है x की, इस कर्व पर, इस कर्व पर x क्या है 0, तो लोअर लिमिट क्या होगी 0. और अपर लिमिट x कहां तक वेरी कर रहा है, यहां तक वेरी कर रहा है. ये कर्व क्या है y² = ax, तो इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी y² / a. इस कर्व पर क्या है y² / a, किसकी वैल्यू है x की वैल्यू, तो y² / a. और y टोटल कितना वेरी कर रहा है, मिनिमम वैल्यू इज ऑफ y इज 0, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इस रीजन में यहां तक जा रहा है, y = a. सो 0 to a. तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट, तो अब पहले x के रिस्पेक्ट में होगा. सो x के रिस्पेक्ट में y² कांस्टेंट है, केवल क्या बचा 1/√y⁴ - a²x². तो ये 1 - x² टाइप का है, तो हमने ये कन्वर्ट किया, y² अलग रखा और y² / a का होल स्क्वायर रखा, मतलब हमने a² इस स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया. क्लियर? तो 1/a बाहर आ गया, तो ये क्या बचा y² / a का होल स्क्वायर - x². सो दिस इज साइन इनवर्स x मीन्स x बाय y² / a, तो a ऊपर आ गया, ax / y². अब लिमिट्स लगा दीजिए, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद ये मिलेगा. तो अब फंक्शन बचा y² dy. अब फिर से y के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो y³ / 3, लिमिट्स लगाइए y² / 6, पाई a² / 6. तो केवल आपको रीजन चेक करना है कि रीजन क्या है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, रीजन से ही आपको लिमिट्स मिलेगी. नेक्स्ट, ये लिमिट्स किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है, तो यानी y की लिमिट्स हैं. तो y = x², यानी वो क्या होगा, एक पैराबोला. लोअर लिमिट से y की वैल्यू कहां तक जा रही है 2 - x तक, यानी x + y = 2. तो x + y = 2 एक लाइन है, x + y = 2. ठीक है. प्लस अब x की लिमिट्स 0 to 1, तो x 0 कहाँ है, यहाँ पर है, और 1 कहाँ है, 1 हमें चेक करना पड़ेगा कि 1 कहाँ आ रहा है. 1 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं. तो हमने क्या किया, इस पहले तो इस ये लाइन है y = 2 - x, और ये कर्व है y = x². इसको दोनों को देख लेते हैं इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो या तो x + y = 2 में y की वैल्यू x² रख दीजिए, तो x + x² = 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. तो x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी x की वही ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. या यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - y, वो 2 - y यहाँ रख दीजिए, तो वो भी एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. उसको सोल्व करेंगे तो भी रूट्स हमें मिल जाएंगे. तो वो जो रूट्स आएंगे वो आएंगे 1 1, यानी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 1 1. और हमें रीजन क्या दिया था, x = 0 to 1, यानी x = 0 ये लाइन हो गई, x = 1 ये लाइन हो गई. क्लियर? तो x = 0 to x = 1. तो बाउंडेड रीजन देख लेते हैं. इस पैराबोला से इस लाइन तक x = 0 से x = 1 तक. तो जो बाउंडेड रीजन हो गया वो क्या हो गया, ये वाला पार्ट. क्लियर? ये वाला पार्ट. अब देखते हैं किसके, अब ऑर्डर का चेंज करना है, तो पहले किसकी लिमिट्स थी, y की लिमिट्स थी. अब x की लिमिट्स है, तो x के रिस्पेक्ट में पैरेलल हमारी स्ट्रिप बनेगा.
तो अब देखिए अगेन वो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में बनाना, अगर हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है तो स्ट्रिप क्या होगी, एक्स के पैरेलल होगी। लेकिन आप चेक कर सकते हो कि अगर एक्स की स्ट्रिप आपने यहां बनाया तो लोअर लिमिट ये मिलेगी, अपर लिमिट इस पैराबोला से मिलेगी। लेकिन अगर एक्स आपने यहां ड्रॉ किया तो आपकी लोअर लिमिट यहां से मिलेगी, अपर लिमिट इस लाइन से मिलेगी। तो इस रीजन को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? रीजन आपको लास्ट लेक्चर में भी क्लियर था कि मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज द रीजन। क्योंकि अगर आप स्ट्रिप यहां बनाएंगे तो अपर लिमिट हमें इस पैराबोला से मिलेगी, अगर आप स्ट्रिप यहां बनाएंगे तो हमें अपर लिमिट इस लाइन से मिलेगी। तो y जो x वेरी कर रहा है अपर लिमिट में, वो दो तरीके से वेरी कर रहा है। सो दो वे हैं, यानी दो रीजन बनेंगे। तो रीजन हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखिए इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक तो हमारा जो x है उसकी अपर लिमिट इस पैराबोला से मिलेगी, लेकिन ए पॉइंट के ऊपर अगर हमने स्ट्रिप बनाया तो हमें जो x की अपर लिमिट है वो इस लाइन से मिलेगी। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो पहले वाले रीजन में देख लेते हैं, ये वाले रीजन में CAPO, ये वाले रीजन में देख लेते हैं। तो इस रीजन में अगर हम देखा तो लोअर लिमिट तो x की 0 है, अपर लिमिट इस पैराबोला से मिलेगी। तो 0 टू दिस पैराबोला, पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इससे x की वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट y पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट y तक जाएगी। सो 0 टू स्क्वायर रूट y। एंड इस रीजन में y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो y की मिनिमम वैल्यू 0 है और y मैक्सिमम इस लाइन तक जा रहा है। यहां पर y क्या है, 1। तो 0 टू 1। अब दूसरा रीजन देख लेते हैं। इस रीजन में x की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कहां जा रही है, इस लाइन तक। इस लाइन पर क्या है, x की वैल्यू है 2 माइनस वाई। तो 0 से लेकर 2 माइनस वाई, और इस रीजन में y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 पर। यानी इस लाइन से हम यहां तक जा रहे हैं तो इस लाइन पर y की वैल्यू 1 है, और ऊपर ये वाली लाइन देख लेते हैं कि ये b पॉइंट क्या है, इस पर b की वैल्यू क्या है। तो b की वैल्यू यानी x इज इक्वल टू 0 यहां रख देते हैं। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी इस लाइन से, 2। तो y की वैल्यू कहां से जा रही है, 1 टू 2। यहाँ पर मिनिमम 1 है, 1 से लेकर इस पॉइंट तक b पॉइंट पर वैल्यू क्या है, 2। 0 टू 1 टू 2। सो जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो वही क्या है कि जो इंटीग्रेशन है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, प्लस पहला वाला 0 टू 1 स्क्वायर रूट y तक, दूसरा वाला 1 टू 2 0 से 2 माइनस वाई तक। बहुत इजी इंटीग्रेशन है क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल है। तो पहले आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है वो आपको देखना है। तो ये x की लिमिट्स है, यानी पहले x का होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई एज इट इज, y कांस्टेंट है, लिमिट्स अप्लाई की। सिमिलरली इधर भी ये y x की लिमिट्स है तो x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, y एज इट इज कांस्टेंट है, लिमिट्स अप्लाई कीजिए, फिर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कीजिए, ये आपका आंसर आ जाए। ऐसे ही ये लिमिट्स x के टर्म्स में यानी y की लिमिट्स हो गई। तो y इज इक्वल टू x लोअर लिमिट होगी, तो y इज इक्वल टू x ये लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। और फिर जा रहा है y की अपर लिमिट है स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव है, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एक सर्कल मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेकिन क्यों कहां तक जा रहा है, y की वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी केवल इतना पार्ट आपको लेना है, ये वाला पार्ट। क्लियर? इस लाइन से ऊपर यानी ये लोअर लिमिट होगी, y इज इक्वल टू एक्स से सर्कल तक, यानी सर्कल ये हो गया, सर्कल तो ये है, y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि लाइन क्या होगी, लाइन तो पूरी है ना, लाइन तो इनफाइनाइट होती है, से सर्कल तक, यानी आपको ये जा सकते हैं या ये जा सकते हैं, बट क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव y केवल यहाँ है इस रीजन में, इस तो ये वाला पार्ट, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो केवल इतना जाएगा। तो अच्छा, y पॉजिटिव तो यहाँ पर भी है, तो अभी हम टोटल एरिया रिफाइन करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गई, से y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पूरे रीजन में y पॉजिटिव है तो अभी अभी हमारा इतना बना। ठीक है, अब x की लिमिट देख लेते हैं। तो x की लिमिट क्या है, 0 टू 1, तो x इज इक्वल टू 0,
ये x इज इक्वल टू 0 हो गया, 2 1, तो 1 यहाँ कहीं होगा, x इज इक्वल टू 1, तो यानी अब हमारा रीजन लिमिटेड हो गया, यानी हमें ये वाला पार्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ये छोड़, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 0 से 1 वाली लिमिट नहीं आ रही है, तो x इज इक्वल टू 0 यानी इससे x इज इक्वल टू 1 जहां पर भी लाइन आएगी वहां तक आपको रीजन लेना है। तो अब बस ये देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 तो हमें पता है यहाँ आएगी, x इज इक्वल टू 1 हम चेक कर लेते हैं कहाँ आएगी, तो ये सर्कल और ये लाइन को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक कर लेते हैं कहाँ बनेगा, तो सर्कल में आप y इज इक्वल टू x रख दीजिए, तो जैसे इस सर्कल में आप y इज इक्वल टू x रखेंगे तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करोगे तो x के हमें वैल्यूज मिलेंगे। क्लियर? तो x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो x की लिमिट्स मिलेंगी, तो हमें वो उससे x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और अगर x 1 है तो y भी 1 होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या मिला, 1 1, तो 1 1 मिल गया, यानी वो अपर लिमिट जो x की है वो कितनी है, x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक। अब रीजन में देखिए पहले लिमिट्स किसकी थी, y की, अब हमें x की चाहिए, तो हमें x के पैरेलल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, तो x की अगेन वही केस बन रहा है कि x की अगर हम स्ट्रिप यहां बनाएंगे तो अपर लिमिट हमें इस लाइन से मिलेगी, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर अगर हमने x का स्ट्रिप यहां बनाया तो हमें अपर लिमिट किससे मिलेगी, इस सर्कल से, इसलिए इसको, इस रीजन को हमें अगेन दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ इस पॉइंट या इस रीजन से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें लाइन मिलेगी और यहाँ से यहाँ तक हमें सर्कल मिल जाएगा, तो दो स्ट्रिप बनेंगी, एक इस रीजन के लिए, एक इस रीजन के लिए, तो जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा प्लस। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें लोअर लिमिट क्या है, x की 0, इसमें क्या है, x की अपर लिमिट क्या है इस लाइन पर, y, तो x इज इक्वल टू कहाँ गया, सो पहला वाला पार्ट हो गया x इज इक्वल टू 0 टू y, और इस केस में हमारा y कितना वेरी कर रहा है, तो 0 टू सॉरी एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है इस रीजन में 0, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इस लाइन तक जा रहा है, इस लाइन पर वाई की वैल्यू क्या है 1, सो 0 टू 1। अब दूसरा रीजन देख लेते हैं, तो इस रीजन में y की x की लोअर लिमिट क्या है 0, और अपर लिमिट क्या है, इस सर्कल से मिलेगी, इस सर्कल पर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर, पॉजिटिव होगी क्योंकि x यहाँ पॉजिटिव है, सो स्क्वायर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो 0 टू स्क्वायर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर y कितना वेरी कर रहा है, मिनिमम ये है, यानी y इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम इस b पॉइंट तक जाएगा, तो बी पॉइंट यानी इस सर्कल पर हम क्या रख देते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, क्योंकि बी पॉइंट y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x 0 होगा तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2, तो y स्क्वायर 2 कब होगा, जब y स्क्वायर रूट 2 होगा, y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2, यानी y की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 2 पॉजिटिव होगी, सो 1 से लेकर स्क्वायर रूट 2, दो पार्ट हो गए, दोनों को आपने सेपरेट किया, प्लस किया, यानी ये चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया। अब बस आपको इंटीग्रेट करना है, तो पहले लिमिट्स किसकी हैं, क्योंकि आप पहले लिमिट x की है तो यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो x के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप t ले लीजिए, तो 2x dx dt में चला गया, यानी x dx की वैल्यू होगी dt बाई 2, तो ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट t dt बाई 2, तो इजी है उसका इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेट कीजिए, फिर y की लिमिट्स अप्लाई करके y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर ये आएगा। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने, बस रीजन बनाना आपको आना चाहिए। ये क्या है, एक्स स्क्वायर x के टर्म्स में, यानी y की लिमिट है तो y की लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर बाय a, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय, यानी ये एक पैराबोला होगा, फिर y इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, वो एक लाइन होगी, तो रीजन ये बनेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई पैराबोला, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a लाइन होगी, और बाकी लिमिट्स क्या है, x वेरी कर रहा है 0 टू a, तो x 0 यहां होगा इस लाइन पर y एक्सिस पर, और a हम चेक कर लेते हैं अभी इंटरसेक्शन पॉइंट से कहां करेगा, तो ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू a, इसको इस पैराबोला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई में, तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या तो एक्स स्क्वायर यहाँ से y की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, दोनों किसी वे में आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जब उसको सॉल्व करोगे तो उससे रूट्स हमें मिलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ए ए। क्लियर, तो ए हमारा, यानी ये हमारा एक्स इज इक्वल टू ए लाइन हो जाएगी। क्लियर, तो एक्स इज इक्वल टू ए 0 टू ए, यानी ये हमारा, तो बाउंडेड कर क्या हो गया, ये वाला पार्ट पैराबोला से लाइन तक, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू ए तक,
तो हमारा जो रीजन हो गया वो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला। आप किसकी लिमिट्स निकालनी है, ऑर्डर चेंज करना है, तो यहाँ पहले y की लिमिट्स थी, अब x की लिमिट्स चाहिए, तो x के करस्पॉन्डिंग जैसे ही आप देखिए इस रीजन में अगर आप y के करस्पॉन्डिंग पहले इंटीग्रेट करते हो स्ट्रिप ये बनेगी, तो पूरे रीजन में सेम आएगा। अपर लिमिट आपको सेम, लोअर लिमिट यहाँ से मिलेगी, अपर लिमिट यहाँ से मिलेगा, तो एक ही इंटीग्रेशन बनेगा। जैसे लेकिन जब आपको x के रिस्पेक्ट में करना है तो प्रॉब्लम वही है कि अगर आप स्ट्रिप यहाँ बनाएंगे तो अपर लिमिट हमें इस पैराबोला से मिलेगी, और अगर आप स्ट्रिप यहाँ बनाएंगे तो हमें अपर लिमिट इस लाइन से मिलेगी। तो यानी हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर दिया। रीजन 1 में हमें अपर लिमिट इस पैराबोला से मिलेगी, रीजन 2 में हमें अपर लिमिट इस लाइन से मिलेगी, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी वही रीजन है, बहुत इजी है। ये तो सिंपल पॉलिनोमियल है और एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अब इसमें देखिए लिमिट्स हैं y से d तक। तो y से d यानी ये किसकी लिमिट्स है, इन टर्म्स ऑफ y है, यानी x की लिमिट्स है। तो x इज इक्वल टू y से x इज इक्वल टू d तक जाना है, या a तक, ये a पॉइंट है, सॉरी a। सो y की लिमिट्स आर, ये x y के टर्म्स में लिमिट है, यानी x की लिमिट है, तो x इज इक्वल टू y से x इज इक्वल टू a तक। तो x इज इक्वल टू y ये लाइन होगी, से x इज इक्वल टू a तक, यानी ये बना। और दूसरी लिमिट है 0 से a, यानी ये y की लिमिट हो गई। तो y इज इक्वल टू 0 यहाँ है और y इज इक्वल टू a यहाँ होगा। तो यानी टोटल हमारा जो कॉमन रीजन हो गया वो ये वाला पार्ट हो गया। क्लियर? तो ये रीजन में अब देखिए हमें लिमिट्स पहले यहाँ इस केस में x की लिमिट्स थी, तो हमें y की लिमिट्स बनानी है। तो हमें y के करस्पॉन्डिंग पैरेलल आपको लाइन बनानी पड़ेगी। तो y के पैरेलल लाइन बनाए। अब अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट्स क्या होगी 0, और अपर लिमिट इस लाइन से मिलेगी। तो इसमें y की वैल्यू क्या है x, तो 0 टू x y की लिमिट्स। और इस रीजन में a कितना वेरी कर रहा है, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है। तो x 0 से a तक हो गया, x 0 से a। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। तो पहले y के रिस्पेक्ट में x ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x तो कांस्टेंट है, तो केवल बचा 1 बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय a tan इनवर्स y ओवर a। बस आप लिमिट्स अप्लाई कीजिए, फंक्शन x में आ गया, अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर कोई इस केस में भी देखिए ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर हमें y के करस्पॉन्डिंग पहले आपको इंटीग्रेट करना है तो दो पार्ट बनेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ स्ट्रिप बनाएंगे तो अपर लिमिट हमें इस लाइन से मिलेगी, अगर आप यहाँ स्ट्रिप बनाएंगे तो अपर लिमिट हमें इस लाइन से मिलेगी। इसलिए दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ये भी वही है, ये भी वही है। इस केस में भी ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है। सर्कल है, सॉरी हाइपरबोला है। तो आप बस अब ट्राई करिए क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट होता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So the next topic is double integrals in polar coordinates.